JSS Academy of Technical Education, Noida, and we welcome you all to DSC Hackfest. So, what is DSC Hackfest? DSC Hackfest is an event made to teach you all open source by providing projects to make contributions and participate in Hacktoberfest 2020. So now we will get to know what is exactly Hacktoberfest. Next. So, what is Hacktoberfest? Hacktoberfest is the question of all the beginners in tech. So, Hacktoberfest is a month long celebration of open source run by DigitalOcean, and it lasts for 1 month, that is from 1st October to 31st October. To become an eligible participant of Hacktoberfest, we need to make 4 valid pull requests on a public GitHub repository. So, and if we do this successfully, we earn a T-shirt or become eligible as a participant, or we can become eligible to earn a T-shirt or plant a tree. So, okay, so many of you haven't contributed to open source. Okay, so how many of you haven't contributed to open source as far now, or have contributed? Do reply in the chat. माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर. Okay, you can also unmute yourself or reply in the chat. Okay. So I'm getting replies from some of the participants contributed. Okay. So open source. Open source code is the code which is made publicly. Okay. So many of you have not contributed to open source as well. Okay. So let's get to know what is open source. Open source code is the code which is made publicly available for everyone to modify and learn from it. Open source brings in collaboration and contribution on projects by anyone in the world. So these projects provide you an insight so that you can contribute and add new features to the same depending upon your tech stack. Next. Okay, so the this is what is open source. So now many of you might think, okay, so now I know about open source, but what will I get if I contribute to open source, and what is the benefit? So open source brings to you a lot many opportunities. Let's see some of those. Open source improves your coding skills. We learn a lot many new features of the tech stack we are working on and builds up our communication skills. There are many open source opportunities. One of them is Hacktoberfest, of course, and other than that we also have many other opportunities where you get to know about open source projects and you can contribute in them. You also get to know many people in your tech stack or any other tech stack who are doing far better, and you can learn from them. So it increases your communication skills and peer recognition. Also, open source makes a software, like whatever the project is on Android, web programming, or even a design, whatever it is, it makes the project more improvised on a professional level. And so, because many people use their skills and knowledge through collaboration. Okay, next. The power of open source is the power of people. The people rule. So let's see what's the meaning of this quote. ओके, ठीक है. तो गिट और गिटहब ओपन सोर्स बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो इस चीज़ को बारे में जानना ज़रूरी है ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करने के लिए. सो ये कोड सब देख रहे हैं, तो इसके बारे में कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा कुछ भी? एनीवन? अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं.
ठीक है, चलो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हम बताते हैं कि द पावर ऑफ ओपन सोर्स इज द। बेसिकली सर हाँ बढ़िया, बताओ। सब बेसिकली कोड को मतलब देख के समझ सकते हैं कि मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारा ओपन सोर्स है तो पीपल हैव द पावर टू मेक चेंजेस एंड अपडेटेड एंड गेट द न्यू वर्जन ऑफ दैट। सो बेसिकली मतलब पीपल रूल कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि मतलब उनके पीपल हम लोगों के हाथ में होता है डेवलपर्स के कि हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ओपन सोर्स से फायदा क्या होता है? ओपन सोर्स तुम प्राइवेट भी रख सकते हो कोड को, ओपन सोर्स से फायदा क्या होता है? एंड पावर ऑफ पीपल कैसे है? एनी आइडिया? कोई भी चेंजेस कर सकता है उसमें। एग्जैक्टली, एक पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट कोई सी बताना है? अभी काफी सारे लोगों ने बोला था कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ओपन सोर्स में, तो कोई कुछ बोलना चाहेगा? कैसे लगता है कि तुम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड देन वो बाकी लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें इस कोटेशन का रेलेवेंस क्या है? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? देखो सही हो गलत जिन्होंने हो देखा कोई। है कंट्रीब्यूट का। बेसिकली मैम बोलो। हाँ, बोलो बेसिकली बोलो। कोई भी प्रोजेक्ट हमारा है अगर वो डिप्लॉयड, अगर वो होस्टेड है और मतलब काफी सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो जब भी अगर आप कंट्रीब्यूट उस प्रोजेक्ट में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपने मतलब उन मतलब आपने अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया उस प्रोजेक्ट में तो आपने बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट किया नाइस। और वो मतलब इम्पैक्ट तुम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो जैसे तुमने किसी एक बड़े से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मोजिला फायरफॉक्स या पीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब सबको आई गेस पता होगा, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ओपन सोर्स तो है वीएलसी। अगर इसमें कोई भी छोटा सा भी फीचर तुम ऐड करो तो वो फीचर अल्टीमेटली लाखों, हजारों, करोड़ों लोग यूज कर रहे होते हैं। तो यस 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 हम्म, तो एक तो ये चीज़ हुई कि हम में से कोई भी, चाहे जितना छोटा डेवलपर हो, हम अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में, एंड वो अल्टीमेटली इतने लार्ज स्केल पे यूज़ होने वाला है। यस ऐसे यस दैट बिना इज व्हाट किसी एक्सपीरियंस के हम में से कोई किसी कंपनी के प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकता। बट ओपन सोर्स एक ये पावर देता है हम जैसे डेवलपर्स को कि हम अपनी-अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जाके इन बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yeah. Vatsal, will you like to continue? या सो सब बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है इस चीज़ का। ओपन सोर्स बहुत सही चीज़ होती है। एंड अगर एक अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो आरोग्य सेतु ऐप बहुत लोग ने यूज़ किया होगा एंड आपको पता होना चाहिए कि वो ओपन सोर्स है, उसका कोड पब्लिक है। एंड उसके बारे में आप लोग को फीचर्स पता ही है वो कितना स्ट्रॉन्ग ऐप है। तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें गिटहब और गिट की ज़रूरत पड़ती है। तो गिट और गिटहब के बारे में तो थोड़ा को नॉलेज होनी चाहिए। चैट बता सकते हो अगर किसी को नॉलेज है, नहीं है, या बोल सकते हो। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं, ठीक है? तो गिट और गिटहब क्या होता है? वत्सल, जस्ट अ सेकेंड, ये जो भी है राहुल शर्मा, यार थैंक यू दैट यू आर शेयरिंग योर व्यूज़ है, बट प्लीज़ इसको कोई कंट्रोवर्शियल इशू ना बनाएं। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं। सो प्लीज़ चैट ऑप्शन में ऐसी चीज़ें मत लिखो जिससे कोई और ऑफेंड हो सकता है। सो प्लीज़ मेंटेन द डेकोरम एंड एक अच्छा सा डिस्कशन करने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग। एक नई टेक्नोलॉजी गिट एंड गिटहब के बारे में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ एनवायरनमेंट वैसा ही रहने दें। ओके, प्लीज कंटिन्यू बच्चा। सो गिट और गिटहब के बारे में थोड़ा बताते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So basically, what is Git and GitHub? So Git is a version control system that lets you manage and keep track of your source code history
अच्छा, इस चीज के बारे में कितनों को पता था कि गिट और गिटहब से सोर्स कोड की हिस्ट्री को हम ट्रैक कर सकते हैं, या कितनों को ये लगता था कि सिर्फ वो कोड को स्टोर करने के लिए है, ताकि कभी लैपटॉप से कोड चला जाए तो हम बैकअप कर लें? मतलब ओके, समवन रेज्ड हिज हैंड, निखिल नारा, हाँ यू कैन स्पीक। यस, मेरे को पता था, वैसे मैंने यूज़ भी किया है गिटहब ठीक है, अपने इसके लिए। बस मेरे को इतना जानना था, गिट हब एंड गिट लैब में क्या फ़र्क है? ओके, गिटहब और गिटलैब मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। देखो, गिट तुम्हारा क्या होता है कि वर्जन कंट्रोल के चीजों को ट्रैक करता है, हिस्ट्री कोड को, ठीक है। बट गिट तो एक लोकल चीज है जिसको तुम अपने सिस्टम के कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। बट अगर सिस्टम की चीज, जैसे हम कहते हैं, समझते लोग कहते हैं कि अगर किसी वजह से डिलीट हो गई तो तुम्हारी गिटहब की गिट की जितनी भी चीजें होंगी, हिस्ट्री होंगी, वो भी चली जाएंगी। सो इन सब चीजों को स्टोर ऑनलाइन एक सर्विस पे अगर कर दो, जो प्रोवाइड करता है गिटहब, गिटलैब, गिटबकेट, गिट जो भी तुमने सुने हुए हैं, सबवर्जन एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारे ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस होती हैं, जो कि गिट रिपोजिटरीज को स्टोर करवाती है, उनको बहुत सा हेल्प मिलता है इन सब चीजों से। ठीक है, तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तो अभी बेसिकली सब लोग को बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गिटहब से, और गिटलैब और ये सब चीजें तुम लोग की काफी इंडस्ट्रियल में यूज होती है, वो आगे लोगों को पता चलता जाएगा इनके बारे में। एंड सबको यूज करना काफी सिंपल है और एक ही तरीके से होता है, सबके कमांड्स एक है, तो इस पे कोई इशू नहीं होगी। तो अब थोड़ा किसी को अगर नहीं पता हो कैसे सेटअप करना है, तो हम एक डेमो दिखा दे रहे हैं कैसे गिटहब को सेटअप करना है। ओके, तो सबसे पहले एक क्रोम टैब खोला जाएगा एंड उस पर तुम लोग को गूगल सर्च करना होगा गिट। गिट सर्च करने पे तुम डाउनलोड्स पे जाके तुम्हें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैक ओएस, विंडोज और लिनक्स के लिए। और जैसे कि हमारे विंडोज लैपटॉप है, तो हम विंडोज पे विंडोज का फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो गिटहब से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे लैपटॉप पे गिट बैश होना चाहिए। सो अगर किसी के लैपटॉप पे नहीं है या है और किसी को कंफ्यूजन है, तो उसको चेक करा जा सकता है बाय यूजिंग दिस कमांड गिट वर्जन। सो तुम्हें गिट वर्जन के उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि गिट वर्जन तुम्हारे लैपटॉप पे 2.27 और जो भी वर्जन होगा उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे हो जाएगा, और ये गिटहब होने के बाद तुम किसी भी रिपोजिटरी पे काम कर सकते हो। और गिटहब के कमांड्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि तुम सारे काम कर सकते हो। तो सारे कमांड्स तुम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में देख सकते हो यूजिंग गिट डैश डैश हेल्प। सो जितने भी तुम्हारे कमांड होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो सब तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी, लाइक क्लोन, इनिट, ऐड, रिस्टोर, पुल रिक्वेस्ट, मर्ज, रिप्लेस एक्सेट्रा, बहुत से कॉमन टर्म्स हैं, एंड कुछ फेल। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी को गिट और गिटहब पे कोई भी डाउट हो तो अब पूछ सकता है, कोई सा भी छोटा सा डाउट हो, कोई टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, एनीथिंग। किसने किसने पहले से यूज किया हुआ वो गिटहब, कोई है ऐसा? हाँ, मैंने यूज़ किया है सर। ओके, ओके, तो जिन जिन लोगों ने गेट और गिटहब पहले यूज़ कर रखा है, चलो मुझे कोई जल्दी से ये बताएगा, व्हाट यू लाइक अबाउट गिटहब? मतलब बहुत सारे डेवलपर्स को कहते हुए सुना होगा कि देयर लाइव्स आर नॉट पॉसिबल अबाउट विदाउट गिटहब। तो मतलब तुम लोगों को क्या लगता है, जितना अभी तक जो भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है, उस हिसाब से गिटहब का कौन सा ऐसा फीचर है जो बहुत ज़्यादा पसंद है तुम लोगों को? सोर्स कोड ट्रैकिंग हिस्ट्री, बिकॉज पहले मैंने क्या चेंजेस किए थे, उसकी वजह से क्या चेंजेस आए मेरे कोड में, वो बेटर लगता है। प्लस कोई मेरे पास चेंजेस करने के लिए भेजे तो पुल रिक्वेस्ट भेजता है, डायरेक्ट चेंजेस नहीं करता। अगर मेरे को अच्छा लगे तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक वो अच्छा लगता है। ओके, प्लस बात ऑलमोस्ट सही। सारे कोड ओपन सोर्स हैं, ऑलमोस्ट सारा ओपन सोर्स है, और अगर हम चाहें तो प्राइवेट भी खोल सकते हैं, बट बहुत कम है जो प्राइवेट। हम्म। एक ये क्वेश्चन है देखो यहाँ पे। पहुंच कितनी आसान जाती है गिटहब की वजह से। अदरवाइज मतलब इमेजिन करो अगर गिटहब नहीं होता एंड लॉकडाउन के पीरियड में अगर किसी को कोड शेयर करना होता, अब तुम और तुम्हारा टीममेट एक मतलब बिल्कुल ही अलग लोकेशंस पे हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता।
गिटहब जैसे टूल्स कितना इजी बना देते हैं इस चीज़ को। कोई और शेयर करना चाहेगा? एक there is a क्वेश्चन है question. यहाँ पे बैश एंड गिट CLI पे। तो बेसिकली गिट बैश जो है कमांड लाइन के बस एक ऊपर मतलब कमांड लाइन यूज करना इजी बना देता है गिट बैश, और बाकी अगर यूज करना हो तो कुछ भी यूज करो, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। और मतलब यूजर्स की कंपैटिबिलिटी पे है कि क्या यूज करना वो प्रेफर करते हैं। अब जैसे एंड्रॉइड हम लोग अभी सिखाएंगे एंड्रॉइड में कैसे यूज करते हैं, तो हम कमांड लाइन का एकदम मिनिमल यूज करेंगे, क्योंकि सीधा यहाँ पे VCS के ऊपर एंड्रॉइड स्टूडियो में मतलब देता है कि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसके कमांड्स को बिना लिखे। तो वो अभी आगे दिखाएंगे कैसे। व्हाट्सएप कंटिन्यू। या 1 मिनट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा डोनर ऐप हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है जो DSCK में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये एंड्रॉइड प्रोजेक्ट की लिंक यहाँ मिल जा रही है, इसको कभी भी आप लोग खोल के देख सकते हो। इस लिंक को फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है चैट पे, अभी लिंक को फॉरवर्ड कर दिया जाए चैट पे पर। सो ये प्रोजेक्ट है। सो इस पे कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है, मैं सब बताता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली आपको ये एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बनाया इसलिए गया है ताकि एक पेशेंट जिसको ब्लड की ज़रूरत है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, और एक डोनर जो डोनेट करने के लिए तैयार है, वो इस ऐप पे आके अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है और जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। एंड इसको करवाने के लिए एक हॉस्पिटल बीच में पड़ेगा जहाँ पे आप दोनों कॉमन आके ये पूरी चीज़ को कर सकते हो। सो ये बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है और इस पे आपको काफ़ी चीज़ सीखने मिलेगी, एंड्रॉइड की बेसिक्स एंड एवरीथिंग। एंड इसका स्टैक कॉटलिन है, ताकि सबको बहुत आसानी से कॉटलिन पे कोड करना हो जाए। ठीक है, सो इसको कैसे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है मैं अब दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको स्टार करना होगा dsc.js/plasma donor ऐप को, देन उसको फोक करना होगा। हम उसको प्रोसेस एक बार दिखा देते हैं। तो फोक करने के लिए एक बार इसको फोक करेंगे, फोक बटन प्रेस करके। फोक होने के बाद उसकी एक लोकल कॉपी आपकी बन जाएगी आपके यूजर नेम के साथ। थोड़ा सा टाइम लेता है सिस्टम्स में। या ये क्लोन हो गया है, अब ये आपकी कॉपी हो गई है उस प्रोजेक्ट की जिसको आप कंट्रीब्यूशन के लिए मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्लोन करना होगा इस प्रोजेक्ट को। सो क्लोन करने के लिए सबसे पहले आपको कोड पे क्लिक करना होगा एंड HTTP वाली URL को कॉपी करना होगा। सो यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं एंड अपना टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल में जाके सबसे पहले हमें कौन सी फाइल पे फोल्डर पे इसको रखना है, ड्राइव पे रखना है, पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे D ड्राइव लिया है तो D: डाल के हम D ड्राइव पे आते हैं एंड देन वहाँ पे एक फोल्डर हमने एंड्रॉइड फोल्डर क्रिएट किया है चेन डायरेक्टरी करके, वहाँ पे हमने उसको क्लोन कर दिया है। क्लोन करने के लिए जो आपने कमांड को कॉपी किया है, सॉरी URL कॉपी किया है, बस उसको git clone स्पेस उस कमांड को URL पेस्ट करना है। पेस्ट होने के बाद आपका ये कमांड्स आएंगे खुद से जो क्लोन बताएगा। आखिरी में रिजॉल्विंग डेल्टास 100% डन आता है, इसका मतलब आपका रिपोजिटरी क्लोन होगी आपके लोकल सिस्टम में। नाउ अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो का इस्तेमाल करके बताएंगे कि इस पे कैसे स्टार्ट करना है। सो अगर किसी के सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो ना हो तो हम एक बार दिखा देते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कैसे करना है। सो एक बार ब्राउजर पे दिखाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे करना है। सो सिंपली आपको एक टैब पे एंड्रॉइड स्टूडियो सर्च करना है या फिर developer.android.com खोल के एंड्रॉइड स्टूडियो ऑप्शन में जाके डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो कर लेना है एंड उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके डाउनलोड करके आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो बेसिक सेटअप्स के बाद।
अगर किसी को सेटअप्स में इशू आए तो आप लोग हम लोग से स्लैक चैनल में कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में, हम उसमें मदद कर देंगे। सो वापस एंड्रॉयड स्टूडियो पे आते हैं और उसको क्लोन करना दिखाते हैं। तो बिकॉज हमने क्लोन कर दिया है तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जाके हम डी ड्राइव में हमने एंड्रॉयड के अंदर किया था, तो डी ड्राइव एंड्रॉयड में जाके हमें प्लाज्मा डोनर मिल जाएगा। एक चीज याद रखना है, हमें रूट को सिलेक्ट करना है और प्लाज्मा डोनर खुल जाएगा आपका। खुलने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एंड्रॉयड स्टूडियो को आने में, बिकॉज अभी ग्रेडल फील्ड होगा एंड फाइल स्कैन होती है, इंडेक्सिंग होगी। तो तब तक किसी को कोई डाउट है, जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ पूछना चाहे तो माइक खोल के पूछ सकते हैं। एनीवन? कोई बेसिक से सवाल भी पूछ सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना जरूरी है, कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं? एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड की कोड करने के लिए बनी है और इससे तुम्हारा वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा। सो प्रेफर यही रहेगा कि ये यूज़ करो। इसके अलावा भी होते हैं बट बहुत फ्रेंडली नहीं रहेगा, बिगनर फ्रेंडली नहीं रहेगा। ये काफ़ी इजी हम हो यहाँ जाता है। पे और एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू आवर वेब प्रोजेक्ट। तो जो लोग वेब वाले सेशन के लिए आए थे तो प्लीज़ वेट अ लिटिल एंड उसके बाद हम वेब वाले प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ी देर पेशेंस बनाए रखें। ओके, सो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो गया है, हो रहा है बस। सो प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड में आके आप इसको ऐप सेक्शन को खोल के, मॉड्यूल को खोल के आप पूरे प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हो। सो जावा में जाके एंड पहला वाला खोला प्लीज। यहाँ पे आके पूरा प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी से लेके डेटा से लेके सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी और आप स्टार्ट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन का, जो कि इशू आप वेबसाइट से उठाओगे psc.js/plasma donor से। सो हमने अभी तो ये दिखा दिया, अब दिखाते हैं इश्यूज कैसे देखनी है। तो इशू देखने के लिए रिपोजिटरी में इशू सेक्शन में जाके यहाँ से लिस्टेड, अब हम मेंटर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट पे लिस्ट कर रहे हैं कौन सी इश्यूज हैं। इश्यूज को जाके आप उसको असाइन कर सकते हो। असाइन करके हाँ, हम लोग उसको असाइन जब कर देंगे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। शुरू करने के लिए आपको आपको सबसे पहले क्लोन करना था, जो आपने देख लिया है। क्लोन करने के बाद आपको एक ब्रांच क्रिएट करनी होगी अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से। सो ब्रांच कैसे क्रिएट करना है हम दिखा देते हैं। सो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में आके आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे git मास्टर दिख जाता है, जो कि आपका मेन ब्रांच होता है आपके प्रोजेक्ट का। बट आपको इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, ताकि आप बहुत से ब्रांचेस क्रिएट कर सको। तो आप उसके लिए सब्सिडरी ब्रांच बना लो, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अभी के लिए हम न्यू ब्रांच रख रहे हैं। एंड ध्यान से याद रखना है कि हर ब्रांच को आप मेन से बनाओ और उसको चेकआउट कर लो। चेकआउट करने के बाद आपकी ब्रांच क्रिएट हो जाएगी और क्रॉस चेक करने के लिए कि ब्रांच क्रिएट हो गई है, वो git:/ यहाँ पे न्यू ब्रांच नाम लिख के आ जाएगा आपकी ब्रांच का। इसको करने के बाद सबसे पहले आपको ओरिजिन से एक पुल लेना होगा। पुल कैसे लेना होगा और क्यों लेना होगा ये बता देते हैं। पुल लेना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और एक समय पे एक से ज्यादा लोग इसी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो माइट भी जब आपने एक्सेप्ट किया एक इश्यू को देखा है और उस पर काम करना शुरू किया, उससे पहले हो सकता है उसके बीच में किसी की पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई हो। तो जब कोड मर्ज हो जाता है तो हमें उसको पुल लेना जरूरी पड़ता है, एल्स जब आप अपना कोड को पुश करोगे तो माइट भी मर्ज कन्फ्लिक्ट्स आ जाएं। सो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है एंड ये हर बार फॉलो करना होगा। तो अपडेट प्रोजेक्ट क्लिक करके आप इसको मर्ज इन कमिंग चेंजेस इन करंट ब्रांच करके ओके कर देंगे एंड जितने चेंजेस होंगे इसमें आ जाएगा। यहाँ पे सिंक्रोनाइज आ जाएगा अभी कुछ, बिकॉज यहाँ पे अभी एक क्लोन किया गया, इसका अपस्ट्रीम ज्वाइन करना होगा, अपस्ट्रीम जोड़ो।
ठीक है, ऑल फाइल्स अप टू डेट हो जाएंगी, वो नॉर्मली सबके में हो जाएगा, ये इशू नहीं आएगी। ठीक है, और ये फाइल अपडेट होने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन में आपको जो चेंजेस करने हैं, जो आपने इश्यूज लिए, आप सिर्फ उन स्पेसिफिक फाइल्स पे जाके वो मिनिमल लाइन ऑफ कोड को चेंज करके अपने इशू को रिजॉल्व करिए एंड देन पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सो पुल रिक्वेस्ट रेज करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़े से हम चेंजेस करके बताते हैं कैसे होगा। एक दो लाइन का चेंज करेंगे। लाइक अभी आप देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन ये है एंड इस पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे सारी चीजें करनी है। तो हम एक इमेज भी ऐड कर रहे हैं एक स्प्लैश स्क्रीन में। अच्छा, किसी को स्प्लैश स्क्रीन का मतलब ना समझ में आ रहा है तो वो भी पूछ सकता है चैट पे या फिर आपको एक छोटा चेंज दिख गया है कि एक ब्लैक स्पॉट आ गया है, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है इमेज व्यू का। ओके, अब हमें इस चेंज को, हमारी ये सपोज करो कोई इशू थी तो हम इसको पुश करना है, तो सबसे पहले हमें इस चेंजेस को कमिट करना होगा। एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत इजीली ये सब हो जाता है। गिट के आगे टिक बटन होगा, उसको क्लिक करके हम कमिट कर सकते हैं चेंजेस को। कमिट करने के बाद एक बहुत, ये सारी फाइल जिसमें हमने चेंजेस किए वो यहाँ पे लिख के आ जाती है। तो तुमने फाइल कौन सी चेंज की? एक्टिविटी स्लैश। तो सिर्फ हम टिक एक्टिविटी स्लैश पे होगा, जो ये आइडिया वाला ब्रांच है project.xml, हम इसको अनटिक कर देंगे ताकि इन सब चीजों को अपने पुश पे इंक्लूड ना करें। ठीक है, देन कमिट मैसेज हमें ध्यान से रखना होगा कि वो पूरे इशू को समझा रहा हो और मेंशन कर दे कि हमने चेंजेस क्या किए हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे फिक्स इशू नंबर दिस, देन ऐड इमेज व्यू इन द स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, तो इशू नंबर हैशटैग लगा के करना होगा और वहां से सिलेक्ट हो जाएगी। देन हम इसको कमिट एंड पुश करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में नीचे से मैसेज ऐड होने के बाद। कमिट एंड पुश करने के बाद यहाँ पे कोड अपने आप करेगा एंड यहाँ से हम रिव्यू कर सकते हैं। अगर कुछ वार्निंग्स आएंगी, कुछ एरर्स आएंगी तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। जैसे इस केस में कोई वार्निंग नहीं आ रही है, ना एरर आ रही है, हम सीधे इस पे काम शुरू कर सकते हैं। नाउ कमिट एंड पुश करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम स्लाइड्स के थ्रू दिखाते हैं बिकॉज हम अनयूजुअल ऐसी कोई भी इश्यूज को रेज नहीं करना चाहते। स्लाइड्स पे वापस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट देखने का हो गया, ब्रांच क्रिएशन हो गया, कमिट कैसे करना है चेंजेस को, मैसेज ऐड करना बता दिया हमने आपको, और फोक ब्रांच से कैसे करना है। अब क्या होगा, जब आप वहां से अपने चीज को पुश कर दोगे तो आपके कोड आपके लोकल रिपोजिटरी में पुश हो जाएगा। इसके बाद आपको एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगा अपस्ट्रीम ब्रांच पे। और अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अब जब आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो उसके पहले भी एक बार अपस्ट्रीम से पुल ले लीजिए ताकि आपके मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो इस समय तक चेंजेस आ गए होंगे वो भी मर्ज हो जाए। इसको करने के बाद आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके VCS के थ्रू एक बार दिखाइएगा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना या कैंसिल। ठीक है, तो VCS में जाके यहाँ से चेंजेस को एक बार पुश करने के बाद करना है आपको, एंड देन VCS में जाके जब ये फाइल्स अपडेट हो जाए तो आप VCS में जाके आपको गिट मिलेगा ऑप्शन, गिट में जाके सबसे बॉटम में सेकेंड ऑप्शन में क्रिएट पुल रिक्वेस्ट मिल जाएगी एंड वहां से आप अपना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा किस ब्रांच पे आप कर रहे हो। ठीक है, और आपको हर बार वो DSC JSS नोएडा / प्लाज्मा डोनर ऐप पे ही करना है, मास्टर ब्रांच पे करना है पुश। वहां से उसके बाद अपने आप ब्राउजर पे आ सकते हो और पुल रिक्वेस्ट को वहां से देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे बिकॉज आपने एंड्रॉइड स्टूडियो का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके आपको अपने लोकल में जाके नहीं करना होगा एंड वो सब चीज अपने आप हो जाएगी एंड आपकी पुल रिक्वेस्ट यहाँ मेंशन हो जाएगी। देन वी मेंटर्स वी विल वेरीफाई इट
and after all successful check, we will add labels and merge that pull request. ये एक एग्जाम्पल था कि हमें कैसे करना था. ठीक है, बैक टू स्लाइड. सो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट यहाँ खत्म होता है. सो किसी को कोई भी डाउट है किसी से भी छोटी सी भी चीज से तो बता सकता है, पूछ सकता है. जो भी लोग एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उन्हें कुछ हेल्प हुई इस सेशन से जो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, या फिर अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ चैट में या फिर माइक ऑन करके कोई बात कर सकता है यहाँ पे. किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से. मुझे कोई यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्होंने गिट एंड गिटहब कभी यूज़ किया है, इसको वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? किसी को कोई आइडिया है? पुराने वर्जन रहते हैं, अगर हमको देखते हो तो ओल्डर वर्जन देख सकते हैं चेंजेस से पहले. हाँ, ये बात भी है. और कोई बताना चाहेगा? कोई से भी डाउट पूछ सकते हो, सिली सा भी हो, कोई बात नहीं, सबको आते हैं. हम लोगों को गिटहब GitHub एंड सीखना. GitLab में तो गिटहब और गिटलैब को गिटहब क्या और चीज? लैब में डिफरेंस निकल. देखो, गिटहब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं. गिटलैब ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. गिटलैब में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके लिए पे करना पड़ता है, बट गिटहब इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड गिटहब ज़्यादा वाइडली यूज्ड है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें. अगर तुम लोगों ने देखा हो, जैसे जो प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग सा सेक्शन आता है गिटहब में, जहाँ पे अगर तुम लोगों ने देखा ट्रेलो बोर्ड की तरह, वहाँ पे जितने भी इश्यूज होते हैं वो पिन अप किए जा सकते हैं. तो ये टीम्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है. टीम में किसी एक मेंबर को, मतलब कोई भी उस इशू को पिकअप कर सकता है, देन वहाँ पे उस इशू पे जो भी पीआर डालनी है या जो भी काम उसे करना था वो वहाँ पे अपडेट कर सकता है. एंड दूसरा, गिटहब में दोनों फीचर्स हैं, लाइक पब्लिक रेपोज रखनी है तो पब्लिक रेपोज रख सकते हो, प्राइवेट रेपोज रखनी है तो प्राइवेट रेपोज रख सकते हो. गिटलैब में भी ये फीचर्स हैं, बट उसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स एंड गिटहब ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस और वर्किंग इन टीम्स. कोई और डाउट्स किसी और को? यार काफ़ी शांत ऑडियंस है हमारी. किसी को कोई सब डाउट नहीं है? जेएसएस वाले हैं कि बाहर का कोई है? जेएसएस वाले तो शांत हैं, ये तो पता है, बाकियों का नहीं पता. अच्छा, किसी ने अभी तक हमारे इन 2 प्रोजेक्ट्स पे या हैकटूबर फेस्ट में किसी भी प्रोजेक्ट पे अभी तक कंट्रीब्यूट किया है? Okay. Okay. Someone raised hand. ओके, कोई बताना चाहेगा कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया अभी तक? Algo book for DSA. ओके. नकुल, ध्रुव, तुम लोगों ने किस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया? प्लाज्मा डोनर. ओके. चलो देन मूव ऑन करते हैं वेब वाले प्रोजेक्ट की तरफ. हेलो, आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो चैट्स पे. शायश. यस सर. ओके.
ओके सो चलो वेब वाला स्टार्ट करते हैं। सो हमारे वेब वाले प्रोजेक्ट का नाम है फॉस इवेंट्स, जिसकी लिंक दी हुई है स्लाइड्स में। एक बार मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। ओके सो हाँ ओके ये है एक सेकेंड। हाँ कूल। ओके तो बेसिकली हम लोग का प्रोजेक्ट क्या है मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है जो कि हम लोग को बता देगा जितने भी हमारे अराउंड जितने भी ओपन सोर्स इवेंट्स होने वाले हैं फ्यूचर में या फिर चल रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग को बता देगा। ओके सो ये हम लोग का प्रोजेक्ट। अच्छा कोई बता सकता है फॉस का मतलब क्या है? कोई चैट्स में बता दे, किसी को पता है? Free and open source software. ओके कूल नाइस। हाँ ओके नाइस। नाइस, चलो पता है लोगों को। ओके देन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे कैसे सेटअप करना है। ओके सो सबसे पहले स्लाइड्स पे चलते हैं। स्टैक्स बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से टेक स्टैक्स यूज़ हुए हैं। टेक स्टैक्स में मतलब बहुत ही हम लोग ने कोई फैंसी सा फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया है। हम लोग ने सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ किया फ्रंट एंड में, जो कि आई गेस सब लोग को आती होगी, आई होप आती होगी वेब वालों को। एंड बैक एंड में हम लोगों ने Node.js यूज़ किया है। स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि फ्रंट एंड बैक एंड हम लोग का अभी इस समय इंटीग्रेटेड नहीं है, ये अभी अलग अलग है। सो जिसको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है वो फ्रंट एंड में कर सकता है, एंड जिनको बैक एंड में इंटरेस्ट है वो बैक एंड में कर सकता है। ओके तो फ्रंट एंड वाली जो फाइल्स से रिलेटेड है वो सब हम लोग की मास्टर ब्रांच में। ओके एंड जो बैक एंड रिलेटेड फाइल्स हैं वो हम लोग की बैक एंड ब्रांच में। ओके सो दो अलग ब्रांचेस हैं, तो जिनको जिसमें इंटरेस्ट हो वो उस ब्रांच में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके सो ये हम लोग का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है हम लोग के प्रोजेक्ट का। देन अभी नमन हम लोग को बताएगा कि फ्रंट एंड वाला सेटअप कैसे करते हैं। ओके सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पे ये लिंक मैं दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो उससे हम लोग एक सेकेंड। ये आपको चैट में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप रहता है, देखो सबसे पहले स्टार कर देना इस रिपो को। सबकी बहुत मेहनत लगती है इस पर, तो स्टार करना अच्छा लगता है सारे डेवलपर्स को। और सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये रहेगा, पहले इसको फोक करना है। फोक करने से क्या होगा कि ये जो ओरिजिनल रिपो है यहाँ पे DSC जेसस नोएडा की, तो वो आपके अकाउंट पे एक उसकी कॉपी बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है अपनी ये कॉपी, तो फिर इसको मैं व्यू करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे यूज़र नेम चेंज हो गया, नमन 360 आ गया है DSC जेसस नोएडा से चेंज होके। तो आप लोग जो भी चेंज करेंगे फिलहाल पहले इसमें करेंगे, उसके बाद जो मेन रिपो होगी उसमें पुल रिक्वेस्ट मारते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने चेंज करा है वो ओरिजिनल जो रिपो है वहाँ पे मर्ज हो जाए। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्लोन करना पड़ेगा। जो आपकी फोक रिपो का लिंक है वो यहाँ पे HTTPS वाले टैब में जाके ये लिखा होगा, इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। और जो भी बस फोल्डर वहाँ पे जाके आप एक टर्मिनल खोल लेंगे उसी फोल्डर में। उसके बाद हम लोग गेट क्लोन कमांड होता है। आगे जो एड्रेस आप लोगों ने कॉपी करा था यहाँ पे वो वाला एड्रेस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे गेट क्लोन। मैंने क्लोन कर रखा है पहले से ही, तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो जब क्लोन हो जाएगा, तो मतलब जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फॉस इवेंट्स नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो उस फोल्डर में जाने के लिए हम लोग CD फॉस इवेंट्स कर देंगे। अब मैं फॉस इवेंट्स वाले फोल्डर में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट कोड एडिटर हो आप उसमें खोल सकते हैं। फिलहाल मेरा VS कोड है तो मैं उसमें खोलता हूँ, कोड स्पेस पीरियड से। ये यहाँ पे खुला हुआ है ये। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। एक फ्रंट एंड फोल्डर है, बाकी ये कॉन्फिग्स फाइल्स है और ये index.html है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक कंट्रीब्यूशन इसमें कैसे करना है, यहाँ पे जो इवेंट उसमें लिस्टेड है फिलहाल वो events.json फाइल से लिस्टेड है, जो फ्रंट एंड /data/events.json इस फाइल का पाथ है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग के फिलहाल अभी 3 वो इवेंट दे रखे हैं यहाँ पे।
तो आपका बेसिक कंट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा यहाँ पे, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना रहेगा, यानी एक नया इवेंट हम लोग ऐड करेंगे सेम डिटेल्स के साथ, टाइटल, वेबसाइट, स्टार्ट, एंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो भी डिटेल होगी आपकी, जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट डाल देता हूँ, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। तो फिर उस हिसाब से एक नया इवेंट ऐड हो जाएगा हमारी उस पर ऐप पे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अब आपको एक npm पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम लाइव सर्वर है, क्योंकि हम लोग जितना भी सारा कुछ अपना डेटा है वो सब हम लोग सर्वर पे सर्व करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले कमांड डाल देंगे हम लोग npm इंस्टॉल, या फिर आप npm i डाल सकते हैं। -g होता है ग्लोबल के लिए, मतलब आप ये जो डिपेंडेंसी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं ये सारे आपके प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकती है, केवल इसके लिए नहीं। तो उसके लिए हम लोग -g डालेंगे, स्पेस लाइव डैश सर्वर, इसको डाल देंगे हम लोग, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इसी फॉस इवेंट्स वाली ही डायरेक्टरी में हम लोग लाइव सर्वर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखिए नया ये आ जाएगा, और देखिए जैसे स्टार्टिंग में 3 इवेंट थे, मैंने एक लास्ट में एक ऐड करा था टेस्ट इवेंट, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप वो गूगल करिए कि मतलब कौन से अभी हाल ही में होने वाले हैं ओपन सोर्स इवेंट, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं और पीआर क्रिएट कर सकते हैं। अब जब ये हो गया तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग जितने भी हम लोगों ने चेंजेस करे उन सबको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे गेट ऐड स्पेस पीरियड से। उसके बाद एक कमिट कर देंगे, कमिट में हम लोग मैसेज डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नया इवेंट अपडेट करा है तो यहाँ पे डाल दूंगा न्यू इवेंट एडेड, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जब कमिट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले एक ग्रीन डॉट आ रहा था वो हट गया है, यानी कि इसका मतलब है कि सारी फाइल अब जो है वो पुश करने के लिए रेडी है, यहाँ पे सब स्टेज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब मैं डाल दूंगा गेट पुश कमांड डाल दूंगा मैं, यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब उसको व्यू करने के लिए इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने नया इवेंट ऐड करा था, तो ये तो ये जो मेरी वाला जो ओरिजिन था, जो मेरे अकाउंट में जो इसका कॉपी पड़ी हुई थी, वहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। तो अब पीआर क्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे जाएंगे और जो ओरिजिनल वाली रिपो है, उसके बाद फिर पुल रिक्वेस्ट सेक्शन में जाके यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कंपेयर अक्रॉस फोक, क्योंकि हम लोग फोक में कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब बेस रिपोजिटरी यहाँ पे हमेशा ये रहेगी DSC जैसे नोएडा /फॉस इवेंट्स, मास्टर ब्रांच रहेगी अगर फ्रंट एंड का है, और हेड रिपोजिटरी जो रहेगी वो ये रहेगी नमन 360/फॉस इवेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इवेंट ऐड करा था, तो उसके चेंजेस सब आ जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करके हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों का पहला कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फिर फ्रंट एंड में बेसिकली इतना ही करना है, और बाकी इशू सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के इशूज़ है। फ्रंट एंड के देखिए वेरिंग काइड हार्ट्स है, तो मतलब टैग होंगे यहाँ पे, जैसे UI के अगर कुछ चेंजेस हैं तो ये UI टैग होगा यहाँ पे। बाकी सारे के सारे अक्टूबर फेस्ट की तरफ काउंट होने वाले हैं, और तो काफ़ी बिगनर लेवल इशूज़ है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको आयुष सर बताएंगे कि बैकएंड कैसे सेटअप करना है। ओके, तो मैं अभी एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी सबको, दिख रही है ना? हाँ, ओके। तो बेसिकली क्लोन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, नमन ने जैसे बताया क्लोन कर लिया। जब क्लोन करेंगे तो हम लोग का बेसिकली हम लोग का जो ब्रांच है वो मास्टर रहेगा। हम लोग को बैकएंड में अगर कंट्रीब्यूट करना है तो हम लोग को बैकएंड ब्रांच में शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो CD करके फॉस इवेंट्स फोल्डर में चले जाते हैं। ओके, देन देखिए यहाँ पे मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि ये बता दे रहा है, जैसे यहाँ पे मास्टर ब्रांच में हम लोग हैं इस समय, तो बता दिया उसने कि कौन से ब्रांच में। ओके, तो मुझे जाना है गेट चेक आउट, बैकएंड ब्रांच में जाना है। ओके, तो उसके लिए कमांड है गेट चेकआउट बैकएंड। ओके, देन एंटर दबाएंगे, स्विच टू बैकएंड। ओके, यहाँ पे बैकएंड आ गया, कूल। बैकएंड में चले गए तो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। फॉस इवेंट्स में एक बैकएंड फोल्डर रहेगा,
उसके अंदर देखेंगे काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, मॉडल्स करके, राउट्स करके एंड ऑल है। तो हम लोग को कंट्रीब्यूट कैसे करना है मैं बताता हूँ, एक सेकंड। सो बेसिकली बैकएंड का हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, मतलब बैकएंड में CRUD एप्लीकेशन है, ठीक है। जिनको CRUD नहीं पता बता देता हूँ, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट होता है। सो इसमें हो क्या रहा है, बैकएंड में एक राउट्स फोल्डर है, ओके। इसमें एक इवेंट्स राउट डॉट जेएस करके एक फोल्डर है। सो इसमें कई सारे राउट्स हैं, जैसे गेट राउट है तो वो बताएगा, मतलब ये स्लैश पे बता रहा है कि जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब दिखाएंगे। एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए राउट है, ऐड करने के लिए राउट है, और काफ़ी सारे राउट्स हैं ऐसे ही। और बाकी सारे इश्यूज में हम लोग ने डाल दिए हैं, जैसे अपडेट करने का, डिलीट करने का, ये सब इश्यूज में डले हुए हैं हम लोग के, ठीक है। सो एक सेकेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम लोग को बैकएंड में कंट्रीब्यूट करना है, तो एक पहले हम लोग को डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। सो इसमें हम लोग ने MongoDB लगाया हुआ है, तो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग को लेनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो उसके लिए हम लोग को एक सेकेंड, हाँ, तो MongoDB पे जाएंगे हम लोग। MongoDB एटलस है, रीडमी में मैंने लिंक लगाई हुई है, रीडमी हम लोग की रेपो की रीडमी में है, ओके। उस पे जाएंगे, एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें कुछ डिटेल्स पूछेगा, डेटाबेस का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे फॉस इवेंट्स पहले से ही क्लस्टर बना के रखा है मैंने, ओके। फॉस इवेंट्स पूछेगा, देन पासवर्ड एंड ऑल ये सब पूछेगा। एक क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा जो कि अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगता है क्रिएट होने में, ओके। एक बार क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग को कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी एक, जो हम लोग ऐसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी हम लोग की, ये हम लोग को कॉपी करनी है, ओके। कॉपी कर लिया। अब हम लोग जाते हैं वापस से इस पे, एंड एक फाइल होगी .env.example करके, ओके। यहाँ पे बता रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको करना है, जैसे एक DB कनेक्ट वेरिएबल होगा, यहाँ पे आपको कनेक्शन जो स्ट्रिंग आपने कॉपी की है वो पेस्ट करनी है। पहले तो .env एक फाइल बनानी है आपको, जो मैंने यहाँ पे बना के रखी है ऑलरेडी, और DB कनेक्ट वैसे ही मतलब कॉपी कर दिया पूरा, ओके। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर दी, तो आपका जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है, ओके। तब अब अगर आपको सर्वर स्टार्ट करना है तो टाइप करेंगे नोड सर्वर, तो एक सेकेंड, ओ सॉरी माय बैड, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पहले तो सॉरी, बैकएंड में जाएंगे, बैकएंड फोल्डर में हम लोग को पहले तो npm जो भी नोड डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल करनी होंगी, ओके। सो नोड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड है। नोड डिपेंडेंसीज मतलब कि जो हम लोग का नोड एप्लीकेशन है वो कई सारी लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है, ओके। मतलब एक्सप्रेस है, mongoose है, जो मतलब कर रहे होंगे उनको पता होगा। सो उस पर वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए कमांड है npm इंस्टॉल, या फिर npm i, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आई शॉर्ट फॉर्म है, ओके। देन एंटर दबा देंगे तो आपका जो नोड पैकेज डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। एक नोड मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर बनेगा, ओके, जिसके अंदर कई सारे फोल्डर्स होंगे जो जिससे आपको इस समय मतलब नहीं है, ओके। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे जो भी बैकएंड रिलेटेड फाइल्स हैं वो बैकएंड फोल्डर के अंदर है, तो हम लोग को पहले तो cd करके बैकएंड में जाना पड़ेगा, ओके। अब नोड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग हो चुका है, हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है। देन हम लोग को सर्वर चलाना है, तो नोड सर्वर उसके लिए कमांड है, ये करेंगे तो अराउंड थोड़ा सा टाइम लगता है कनेक्ट होने में। जैसे 2 मैसेजेस आएंगे, पहले तो एक लिसनिंग टू पोर्ट 3000 ठीक है, और एक डेटाबेस कनेक्टेड, ये 2 मैसेजेस आ गए, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक इंस्टॉलेशन सही से किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सर्वर चल रहा है, एंड आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अपने कोड में, ठीक है, इश्यूज़ के हिसाब से। सो इश्यूज़ में दिखा देता हूँ मैंने, जैसे यहाँ पे क्या है, कई सारे इश्यूज़ डाले हुए थे, उस पर कई सारे PRs आ चुके हैं। अभी इस समय करेंटली एक इशू है अपडेट राउट करके, तो उसमें
आपको एक अपडेट राउट क्रिएट करना है, ठीक है। और इश्यूज हम लोग फ्यूचर में अभी ऐड करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी मतलब कोड में पहले तो चेंजेस कर लिए, सपोज मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, एक सेकेंड। सपोज राउटर डॉट गेट प्लेटफॉर्म एड्रेस, जैसे मुझे एक मैसेज भेजना है हेलो वर्ल्ड करके, ओके। मैसेज डाल दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो डाल दिया। सो ये बेसिकली आपका एक वो हो गया, एक चेंज आपने कोड में कर दिया, ठीक है। अब इसको पुश करना होगा आपको, एक सेकेंड। पुश करने के लिए आपको लोकल जो फोर्क रेपो है उसमें पुश करना होगा। सो उसके लिए आप कमांड है गिट ऐड एंड डॉट, जो डॉट मतलब सारी जो फाइल जिसमें चेंज हुआ है वो स्टेज हो जाएंगी, ओके, स्टेज हो गई। उसके लिए फिर उसके बाद कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट /m मतलब मैसेज, कोई मैसेज डालना पड़ेगा जैसे एडेड न्यू राउट, ओके, चेंज हो गई। फिर उसके बाद गिट पुश कमांड हम लोग को करना है, जिससे कि हम लोग की जो फोर्क रेपो है उसमें जितने भी चेंजेस हम लोग किए हैं वो पुश हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। पुश हो गया, गए हम लोग, जैसे ये फोल्डर रेपो है मेरी, फिर उसके बाद चेंजेस आ जाएंगे कुछ, एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं, बैक एंड में गए, पुल रिक्वेस्ट में जा रहे हैं, ओके। तो पुल रिक्वेस्ट में गए तो ये क्या बता रहा है मैं बताता हूँ। बेस रिपोजिटरी है DSC JSS नोएडा। हम लोग अपने जो फोर्क रेपो है उसमें जो चेंजेस हैं वो हम लोग DSC वाले फॉस इवेंट्स में चेंज कर रहे हैं, ओके, मतलब पुश कर रहे हैं, PR मार रहे हैं, ओके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लिखना रहेगा, मतलब जैसे एडेड न्यू इवेंट वगैरह जो भी है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। एंड फिर उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास एक पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी जो हम लोग रिव्यू करेंगे। एंड उसके बाद अगर वो हम लोग को सही लगा देन उसके बाद हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो आपका एक PR काउंट हो गया हेक्टोबफेस के लिए। तो बेसिकली यही था, बैकएंड में हम लोग ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब किसी कोई भी डाउट है फ्रंट एंड या बैक एंड में, सो वो पूछ सकता है। कोई भी डाउट फ्रंट एंड या बैक एंड में? कोई स्टेप समझ किसी में को ना आया कुछ हो? किसी को कुछ समझ में आया जो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वेब और एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स में? ओके, कूल। ओके, बाकी लोग और कोई कुछ पूछना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा? कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड एंड्रॉयड कोई भी डाउट हो, गिटहब। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हम लोग ने रिसोर्सेज भी डाल रखे हैं रीडमी में, एंड्रॉयड के लिए, मतलब एंड्रॉयड वाले रेपो में होगा, और गिटहब का भी डाला रखा है, और फ्रंट एंड और बैक एंड का भी रिसोर्सेज डाल रखे हैं। सो वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी वो प्रॉब्लम। अच्छा, बिकॉज नो वन इज आस्किंग क्वेश्चंस, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इस वक्त, मुझे आंसर कौन बताएगा देखना है। अभी आयुष जब बैकएंड वाला पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा था तो ही सेड कि एक .env फाइल बनानी पड़ेगी। किसी को पता है .env फाइल्स का रोल क्या होता है किसी बैकएंड के प्रोजेक्ट में? यहाँ पे जितने भी लोग वेब वाले हैं, क्या किसी को कोई आइडिया है .env फाइल्स क्या करती हैं, उनका रोल क्या होता है? हाइड सीक्रेट की, ओके, कूल, आता है। और कुछ कर सकते हैं हम .env फाइल्स में? कोई और तो भी कुछ हम लोग बताना ग्लोबल चाहेगा? वेरिएबल यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट में, वो हम लोग वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ नामन, तो मुझे नहीं पता है कितने लोगों को पता था या नहीं पता था, मतलब
किसी को इस तरीके के कोई और डाउट्स हैं कि कौन सी फाइल किस लिए थी या किसी फाइल का क्या रोल होता है इन प्रोजेक्ट्स में, तो प्लीज़ यहाँ पे अभी पूछ सकते हैं। 5 मिनट वेट कर रहे हैं हम लोग। किसी को भी कोई भी डाउट्स नहीं है? अच्छा, क्या यहाँ पे सबको पता है हैकटोबर फेस्ट में इस बार रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं? किसी को पता है? किसी ने ट्विटर, फेसबुक या फिर उनकी वेबसाइट पे देखा कुछ भी? रुद्राक्षी ने देखा है, और बाकी लोग जो यहाँ पे हैं, किसी ने देखा? इस बार सिर्फ और सिर्फ पीआरस मारने से काम नहीं चलेगा, पीआरस मर्ज होनी चाहिए, तभी वो हैकटोबर फेस्ट में काउंट होंगी। एंड उन पीआरस के ऊपर एक लेबल होना चाहिए हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का। एंड सारी पब्लिक रेपोज पे, हाँ, सारी की सारी पब्लिक रेपोज पे आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सारी पब्लिक रेपोज काउंट नहीं करेंगी। जिसमें भी आप लोग कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, जिस भी रेपो में, उस रेपो का जो टॉपिक वाला सेक्शन होता है वहाँ पे हैकटोबर फेस्ट में मेंशन होना चाहिए। एंड जब आपकी पीआर मर्ज हो चुकी हो तो उस पीआर के ऊपर एक लेबल होना चाहिए हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का। तो जिस भी प्रोजेक्ट में आप लोग कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं वहाँ पे ये ज़रूर देख लें कि हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल आपके जो भी रेपो का मेंटेनर है या जिस भी इंसान ने रिव्यू किया है इस पीआर को, उसने हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल लगा दिया हो। अगर ये लेबल नहीं होगा तो पीआर काउंट नहीं होगी हैकटोबर फेस्ट में। मैम एक डाउट है। हाँ रुद्राक्षी बताओ। मैम मर्ज भी होनी चाहिए एंड हैकटोबर फेस्ट लेबल बोथ दोनों होने चाहिए? हाँ, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैम एक्चुअली मैंने अभी जस्ट एक लेटेस्ट एक रिपो पे कंट्रीब्यूट किया था एंड आई कमेंटेड ऑन दैट कि प्लीज लेबल दैट पीआर विद हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड, सो दैट मेंटेनर वाज सेइंग कि योर पीआर गेट मर्ज्ड, सो it is maybe means any of them it should be means कि या तो मर्ज हो या फिर हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड या फिर लेबल हो। तो उन्होंने कहा था कि आपकी मर्ज हो गई है एंड अप्रूव्ड हो गई है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड लेबल भी हो। ओके, या माय फॉल्ट। स्क्रीन पे देखो, अभी जो स्क्रीन शेयर है वहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं एंड तीनों में और लगा हुआ है। तो या अगर पीआर मर्ज हो गई है तब भी सही है, वरना फिर उस पीआर के ऊपर हैकटोबर फेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल होना चाहिए, या फिर पीआर को एटलीस्ट एक रिव्यूअर ने अप्रूव कर रखा हो। ओके और मैम। कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेगा? मैम अप्रूव इन द सेंस? अप्रूव इन द सेंस जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी तुम लोग कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मेंटेनर्स होते हैं या फिर रिव्यूअर्स कह सकते हो उन्हें, जिनका काम ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स या जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी पीआरस उन्होंने क्रिएट किए हैं, उनमें कोड क्वालिटी चेक करना या फिर जो भी इशू में जो भी चीज़ मांगी गई थी क्या वो पीआर में है या नहीं, ये सब चेक करना उनका काम होता है। तो वंस दे हैव चेक्ड एवरीथिंग, तो उसके बाद में वो उनके पास एक ऑप्शन आता है इस पीआर को अप्रूव करने का। तो वंस दे हैव अप्रूव्ड एक टिक मार्क बन के आ जाएगा तुम्हारे पीआर पे। जैसे ये जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, रिव्यूअर के अंदर धीरज कोटवानी, एंड धीरज कोटवानी के आगे वो ग्रीन टिक लगा हुआ है एंड देखो उस पर होवर करने पे वो दिखा रहा है धीरज कोटवानी हैज अप्रूव्ड दीज चेंजेस।
तो जब अप्रूव हो जाता है तो ऐसे ही टिक मार्क आ जाता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे कंडीशंस लगा रखी होती हैं उन लोगों ने कि एक से मतलब एटलीस्ट 2 रिव्यूअर्स ने अप्रूव कर दी हो तभी पीआर मर्ज होगी। तो इसलिए अप्रूव वाला कॉन्सेप्ट आया था। ओके ओके। अच्छा, तो अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म फिल अप कर देना। चैट में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है एंड ये फॉर्म फिल अप कर देना सब लोग ध्यान से, बिकॉज वी विल बी शेयरिंग सम रिसोर्सेज which are important to learn Android development as well as web development, and in projects में कैसे contribute कर सकते हैं, ये जो भी slides हम लोगों ने यहाँ पे show की वो सब हम लोग share कर देंगे once you have filled this feedback form. एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, नहीं तो हम ये शेयर कर भी देंगे। एंड प्लस वी हैव अ स्लैक चैनल जिसका इनवाइट लिंक आई एम शेयरिंग। प्लीज़ एवरीवन जॉइन द स्लैक चैनल टू स्टे अपडेटेड कि इन प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है। हैकटोबर फेस्ट में इस बार बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हैकटोबर फेस्ट में गाइडलाइंस अपडेट की गई हैं। वी विल बी इन्फॉर्मिंग एवरीथिंग that you should be knowing about Hacktoberfest and open source में कहाँ पर contribute करना है, कैसे contribute करना है। तो ये Slack channel ज़रूर join कर लें। एंड इन प्रोजेक्ट्स में आप लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हमने 2 प्रोजेक्ट्स दिखाए, पॉस इवेंट्स एंड प्लाज्मा डोनर ऐप। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग स्लैक चैनल पे शेयर कर देंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है इस हैकटोबरफेस्ट सीज़न कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे इंसेंटिव क्या है, एक टी शर्ट मिलेगी, एक्सक्लूसिव टी शर्ट है। डेवलपर्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इस टी शर्ट का, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट इस मोटिव से नहीं करना है कि एक टी शर्ट मिलेगी। लाइक ओपन सोर्स इज मच मोर देन दिस इंसेंटिव। बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के बारे में सुना होगा। आई गेस बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी लोग GSOC में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे या फिर MLH फेलोशिप, इस टाइप के जो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं। तो ओपन सोर्स में एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, नॉट लाइक कि बस नाम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं किसी भी रेपो पे। अब गिटहब का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटा से भी कोड चेंज हो तो गिटहब उसे PR क्रिएट करने देता है उस पे। लाइक अगर मैं एकदम न्यूबी हूँ और मुझे बस टी शर्ट चाहिए और मुझे 4 PRs मारनी है, तो मेरे पास कितने सारे तरीके हो सकते हैं। लाइक मैंने जाके रीडमी खोली, रीडमी में मैंने 1-2 स्पेसेस एक्स्ट्रा कर दी, न्यू लाइन्स ऐड कर दी, एंड इससे PR तो क्रिएट हो जाएगी, बट इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना, ये कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। टी शर्ट लेनी है, बट आई गेस ज़्यादा खुशी होगी आप सबको वो टी शर्ट मिलेगी अगर किसी अच्छे कंट्रीब्यूशन के ऊपर। एंड इसी वजह से इस बार काफ़ी सारे चेंजेस भी हो रहे हैं हैकटोबरफेस्ट की गाइडलाइंस में, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स वो स्पैम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम अस। एंड स्टिल अगर अभी किसी को कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस पूछने हो, तो प्लीज़ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। एंड प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म ज़रूर भर दें जिसका लिंक चैट में। ऑल्सो अगर कोई यहाँ पे मतलब कोई सजेशन देना चाहता है या फिर कोई DSC JSS की तरफ से कोई चाहता हो कि हम इस टाइप का इवेंट करवाएं, तो मतलब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, या फिर चैट में लिख सकते हैं जिस टाइप के इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो DSC JSS से, जो आप देखना चाहोगे, जो JSS में बेसिकली नहीं होते हैं, या जिस टाइप के इवेंट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई कुछ बोलना चाहेगा इस चीज़ पे?
कोई भी अच्छा प्रेजेंट। कोई सजेशंस हैं? अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर हम एक वर्चुअल हैकेथॉन करवाएं तो कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में यस या नो लिख दो। नाइस, काफी सारे लोग हैं जो वर्चुअल हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। चलिए देन लेट्स रैप अप एंड फीडबैक फॉर्म में भी एक फील्ड है कि किस तरीके के इवेंट्स आप लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ फिल इन देयर। अगर कोई और आइडियाज़ किसी के दिमाग में आते हैं या कोई और टाइप का इवेंट आप लोग चाहते हैं तो, एंड वील जो भी हो surely फीडबैक make फॉर्म में मेंशन कर दें। there's a question. आलोक, आर यू ट्राइंग टू आस्क कि ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए? Yes. ओके, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि ओपन सोर्स में ऑलमोस्ट हर एक इंसान का जो भी स्किल लेवल है, उस स्किल लेवल पे कंट्रीब्यूट करने के लिए इनफ इश्यूज होते हैं। लाइक इतने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, हर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, इन सारे इश्यूज पे जो इन प्रोजेक्ट्स में इश्यूज बने होते हैं, इन पे कुछ लेबल्स होते हैं। कुछ लेबल्स होते हैं बिगिनर लेवल, कुछ होते हैं मीडियम, कुछ होते हैं हार्ड। तो एक तो इन लेबल्स को यूज करके तुम लोग सॉर्ट कर सकते हो इन इश्यूज को, ठीक है? जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी बहुत बिगिनर लेवल पे हो वेब डेवलपमेंट में, तो तुम क्या सॉल्व करना चाहोगे? बिगिनर लेवल इश्यूज। बिगिनर लेवल इश्यूज जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है ग्रीन में, बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज। तो ये जो लेबल्स हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में इश्यूज वाला पेज खोलो, जो लेबल्स हैं उन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो इन लेबल्स के हिसाब से इश्यूज शो करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली पे क्लिक किया तो सारे बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। देन अगर बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज में ज़्यादातर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस हो सकते हैं। लाइक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उन प्रोजेक्ट्स को, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग में अगर तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाउ टू कंट्रीब्यूट इन अ प्रोजेक्ट, गिट एंड गिटहब की नॉलेज पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन वाले चेंजेस से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। इससे थोड़ा सा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि गिट एंड गिटहब में एग्जैक्टली चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। देन उसके बाद तुम लोग मूव ऑन कर सकते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हो नॉर्मल से यूआई फिक्सेस। यूआई फिक्सेस से रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे तुम लोगों को। देन सिमिलरली जैसे ये हमारा एंड्रॉयड वाला प्रोजेक्ट था, एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्ट में भी इन्हें कुछ यूआई फिक्सेस चाहिए, या फिर कुछ जगह पे लाइक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मतलब इस टाइप के इश्यूज यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ओके मैडम। कभी इस चीज से कौन बोल रहा था, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही है एक्चुअली। हेलो मैम, नाउ हाँ इट्स क्लियर। हाँ मैम एक जर्नल डाउट है मैम, जैसे कि आई हैव सीन सम रिपोजिटरीज जिनका टेक स्टैक बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मींस उनमें बैकएंड्स एंड फ्रंट एंड की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। सो अगर हमें कंट्रीब्यूशन करना है तो डू वी नीड कि हमें हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर मतलब अगर हमें सिर्फ फ्रंट एंड वाला ही पार्ट आता है तो कैन वी कंट्रीब्यूट ऑन दैट ऑल्सो? हाँ,
बहुत सारे देखो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स बड़े होते जाते हैं, इन प्रोजेक्ट्स में टेक स्टैक उसी हिसाब से ग्रो करता जाता है। बट अगर कोई जैसे इश्यूज गिटहब में बेसिकली इसीलिए आए हैं कि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि तुम्हें एग्जैक्टली किस जगह पे कंट्रीब्यूट करना है। लाइक अगर किसी ज़्यादातर अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके इशू में प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ करनी है, उसके साथ में ये भी मेंशन होगा कि कहाँ पे चेंज करना है। तो किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि तुम उसका पूरा कोड बेस बैठ के समझो। तुम जिस टेक स्टैक पे, जिस पर्टिकुलर इशू पे कंट्रीब्यूट करने के लिए गए हो, you can ask questions about that particular thing. ज़्यादातर जो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके कम्युनिटी चैनल्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्लैक चैनल क्रिएट कर रखा है, वैसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के जिटर चैनल्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं। तो ज़्यादातर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ ये कर सकते हो कि पहले तुमने अपने लिए अपने हिसाब से एक इशू सर्च किया कि ये वाला इशू जिस पे तुम्हें लगता है कि तुम इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पहले वो इशू ढूंढो। देन उसके बाद थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करो कि इसमें किस जगह पे किस पर्टिकुलर फाइल में तुम्हें चेंज करना है, सर्च करने की कोशिश करो। बाय चांस अगर तुम अटक जाते हो या नहीं होता तो व्हाट यू कैन डू कि इनके जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे जाके तुम लोग ये चीज़ पूछ सकते हो कि मुझे इस इशू में कंट्रीब्यूट करना है एंड यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो कैन समवन हेल्प यू। एंड मोस्टली बिलीव मी, मैंने काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ होती हैं, ये इसी चीज़ में बिलीव करती हैं। लाइक वहाँ पे कोई तुम्हें आके चिल्लाने नहीं लगेगा या कोई कुछ बोलेगा नहीं। दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। They'll कोई जज नहीं make you करता है वहाँ पे बेसिकली, सब मतलब हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो इजीली हेल्प भी हो जाती है, तो और डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ये एक और चीज़ है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिकॉज देखो अभी जैसे रुद्राक्षी का क्वेश्चन था, ये जितने बड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं इनमें टेक स्टैक बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में तुम्हें टेक स्टैक ओपन है, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अब थोड़े दिनों बाद जब हम प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, इंटर्नशिप्स के लिए जाओगे, देन यूल बी वर्किंग फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के लिए। अब वो प्राइवेट कंपनीज हैं तो कई बार उनके टेक स्टैक के बारे में तुम्हें पहले से नहीं पता, बट ऑब्वियसली तुम ये सोचो उनका टेक स्टैक भी छोटा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जाके तुम्हें कंट्रीब्यूट एक बड़े टेक स्टैक पे ही करना है। तो ओपन सोर्स इज लाइक योर प्लेग्राउंड। तुम यहाँ पे जितने ज़्यादा इश्यूज सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करोगे, धीरे धीरे तुम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो कि इतने बड़े कोड बेस में नेविगेट कैसे करना चाहिए, कैसे उस एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंचना है जहाँ पे तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है। एंड प्लस एक टीम में कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है। लाइक बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने कि तुमने कोई इशू पिकअप किया, उस पे एक पीआर क्रिएट की, एंड देन उसके बाद में जो भी रिव्यूअर्स हैं उन्होंने कोई सजेशंस दिए तुम लोगों को। अब कई बार होता है कि ऐसे पीआरस अटक जाती हैं, बट जो रिव्यूअर्स होते हैं उन मतलब वो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनके जो सजेशंस होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। लाइक ये जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कोडिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो इन प्रोजेक्ट्स में जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करते जाओगे तुम लोगों को अंदाज़ा लगता जाएगा कि कोड कैसे लिखना चाहिए, कोडिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, या फिर क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो बड़े स्केल पे जो प्रोजेक्ट्स वर्क कर रहे हैं वो कैसे उनमें कोड लिखा जाता है। आदर्श मैम कुछ ऐसे बिगनर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे मतलब अगर इफ यू वांट कि हमें पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही रिपो पे कंट्रीब्यूट करना है तो हम कर सके। या बिगिनर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब इश्यूज तुम फाइंड कर सकती हो। जैसे सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तुम एक सेलेक्ट कर दो, उस पे जैसे तुमने अपने टेक स्टैक के अकॉर्डिंग तुमने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद जाके तुम इशू सेक्शन में देख सकते हो कौन सा बिगनर फ्रेंडली इशू है वहाँ पे। ऐसे पर्टिकुलर कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें बहुत टाइप के प्रोजेक्ट आ जाएंगे।
तो उसमें हर टाइप का मतलब तुमको मिलेंगे इश्यूज, बिगनर फ्रेंडली या हार्ड या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे। तो उसके अकॉर्डिंग तुमको मतलब इश्यूज बेसिकली चेक करो कौन से बिगनर फ्रेंडली हैं, दैट वुड बी बेटर। Okay, sir. Thank you. आदर्श मिश्रा, आई गेस सेम क्वेश्चन था आदर्श का भी। गाने How to find a repo for open source contributions? आदर्श, can you unmute yourself या फिर क्या पूछना चाह रहे थे exactly? Can you elaborate a little? शायद नेटवर्क इशू है उसका। Maybe. तो किसी और का तो बता क्वेश्चन दो। कोई हो तो आगे बता सकता है, स्लैक चैनल पे पूछ सकता है। तो किसी और के कोई क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेरीज कुछ भी हो किसी और ओपन सोर्स प्रोग्राम को लेके, नॉट जस्ट हैकटोबरफेस्ट या किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को लेके? मैम काफी सही रहेगा मैम अगर मतलब अक्टूबर फेस्ट और हैक फेस्ट के बारे में भी बता। क्या चीज? अक्टूबर हैक फेस्ट और हैक फेस्ट। फेस्ट पे आवाज क्लियर नहीं है। ऋषभ, क्या तुम्हारा क्वेश्चन ये था हैक फेस्ट एंड हैकटोबर फेस्ट में डिफरेंस? यस यस। ओके क्या होता है इसमें, क्या करना है जैसे? ओके। हैकटोबर फेस्ट तो बेसिकली एक ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ ओपन सोर्स, मतलब हैकटोबर फेस्ट एक काफ़ी बड़ा सा एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ये पूरा एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है। पूरे अक्टूबर में जितनी भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये काफ़ी सारे बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज ओपन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर्स ओपन सोर्स में आके कंट्रीब्यूट करना सीख सकें। ठीक है, हैकटोबर फेस्ट में इनका एक कंडीशन होती है कि अगर आपने 4 पीआरस क्रिएट कर ली एंड 4 पीआरस एक्सेप्ट करवा ली, तो उसके बाद आपको एज प्राइज या फिर एज अ टोकन कि आपने ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया है, आपको एक एक्सक्लूसिव टी शर्ट मिलती है। ठीक है, तो ये तो हुआ हैकटोबर फेस्ट। अब ये जो डीएससी हैक फेस्ट हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, डीएससी हैक फेस्ट बेसिकली डीएससी जेएसएस की तरफ से एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट हैकटोबर फेस्ट। हम अपने कॉलेज के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हैकटोबर फेस्ट क्या होता है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अच्छे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने चाहिए, एंड इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज करवाया है ये इवेंट। इस इवेंट में एक तो ये जो आज अभी सेशन हो रहा है, ये लाइव हैंड्स ऑन सेशन था जिसमें अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं। हमने 2 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वेब और एंड्रॉयड के। वेब वाला प्रोजेक्ट है फॉस इवेंट्स एंड एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है प्लाज्मा डोनर ऐप। अभी हम लोग यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि इनमें स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज बना रखे हैं, तो इधर आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हैकटोबर फेस्ट तो ग्लोबल इवेंट है, बट डीएससी हैक फेस्ट हम अपने कॉलेज के लेवल पे डीएससी जेएसएस ने ऑर्गेनाइज करवाया है। ओके मैम, थैंक्स। मैम जैसे आप अभी हाल ही में एमएलएस फेलोशिप के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, तो काफी सही रहेगा अगर फ्यूचर में एक एमएलएस फेलोशिप पे भी वर्कशॉप अगर होती है तो। यस मैम। हाँ हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं हम एक वर्कशॉप, एंड इसीलिए फीडबैक फॉर्म में एक पर्टिकुलर सेक्शन बना रखा है। आप लोग वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं जिसको जिस भी टाइप के इवेंट्स जो आप लोगों को लगता है कि कॉलेज में अभी तक कोई और सोसाइटी नहीं करवा रही है, या जैसा अगर किसी और कॉलेज में देखा हो
एंड आपको लगता है कि हमारे कॉलेज में भी ऐसा इवेंट होना चाहिए, तो प्लीज़ अपने जो फीडबैक फॉर्म था उसमें प्लीज़ फिल अप करें। एज अ टीम, एज DSC JSS हम टोटली ट्राई करेंगे वो इवेंट कॉलेज में करवाने का। और किसी के कोई क्वेश्चंस हों मुझसे या यहाँ पे जितने भी तुम सबके सीनियर्स हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मेजरली हमारी क्राउड सेकेंड ईयर है, तो किसी को कोई और क्वेश्चंस पूछने हो यहाँ पे जो DSC JSS के सीनियर्स हैं उनसे। मैम ये गूगल क्लाउड प्रोग्राम हो रहा है मैम एक, तो मैम उसके बारे में कुछ बताएंगे, हम थोड़ा बहुत इलेबोरेट करेंगे इसको। ये 30 days ऑफ गूगल क्लाउड। यस मैम। यार ये 30 days ऑफ गूगल क्लाउड बेसिकली एक चैलेंज है। क्विक लैब्स नाम का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है गूगल क्लाउड की तरफ से। ओके, ये रही इसकी वेबसाइट। एंड इस प्रोग्राम में बेसिकली इसमें क्विक लैब्स के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं। उन ट्यूटोरियल्स में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है क्लाउड कैसे काम करता है, गूगल क्लाउड बेसिकली कैसे काम करता है। इसमें क्लाउड की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड इसमें ये 2 ट्रैक्स इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला ट्रैक है क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक एंड दूसरा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग ट्रैक्स। तो इस चैलेंज में ये है कि इन ट्यूटोरियल्स को स्टेप बाय स्टेप एनरोल करने के बाद में इन ट्यूटोरियल्स को स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को गूगल क्लाउड की तरफ से कुछ स्किल बैचेस मिलेंगे। इन स्किल बैचेस को आप लोग अपने रेज्यूमेज में ऐड कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पे शो कर सकते हैं। ये बेसिकली ये शो करते हैं कि आप लोग गूगल क्लाउड की तरफ से ऑथराइज्ड हैं, कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट किया है एंड इसमें आपको एक्सपीरियंस है। स्किल बैचेस तो ये हुआ कि आप इसको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। प्लस अगर आप इसमें दोनों ट्रैक्स कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें कुछ गुडीज़ भी हैं। लाइक आपको एक गूगल क्लाउड की एक्सक्लूसिव टी-शर्ट मिलेगी, ये जो स्क्रीन पे है इस वक्त, एंड एक गूगल क्लाउड का स्टिकर पैक प्लस सर्टिफिकेट्स। ओके, एंड ये बैग मिलेगा जब दोनों ट्रैक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब। तो ये था 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड का कॉन्सेप्ट। एंड इसके जो एनरोलमेंट्स हैं ये इस बार अभी तो क्लोज्ड हो चुके हैं। जितने लोग पहले से एनरोल कर चुके हैं उनके पास 5 नवंबर तक का टाइम होगा कि वो लोग इन लैब्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये रहे स्किल बैचेस जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखो सारे बैचेस के नीचे ऐड टू लिंक्डइन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये बैचेस डायरेक्टली लिंक्डइन पे ऐड किए जा सकते हैं। आप लोग रेज्यूमेज में शो कर सकते हो अपने। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने एनरोल किया है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड में? येस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके नाइस, लगभग सबने किया है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ये क्विक लैब्स कंप्लीट करने में, तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स या क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, रुद्राक्षी हैज कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेस्ट, इट्स नाइस रुद्राक्षी। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसने एनरोल किया हो, ईमेल आ चुका हो उस इंसान को बट क्रेडिट्स नहीं मिले हों, तो प्लीज लेट अस नो। मैम कौन बोल रहा था? हाँ हाँ मैम, मैंने फॉर्म भी फिलअप कर दिया था लेकिन प्रोफाइल लिंक कोई और डाल दी थी गलती से। ओके, कोई बात नहीं।
ये बताओ मुझे और कि तुम्हें ईमेल आया है क्या? तुम्हें ईमेल आया नहीं है एनरोलमेंट का? नहीं, कंफर्मेशन ईमेल भी नहीं आया और क्रेडिट्स भी नहीं है। ओके, इसका मतलब तुमने फॉर्म गलत भरा होगा यार। फॉर्म में कुछ मतलब क्विक लैब्स यूआरएल, सिर्फ और सिर्फ क्विक लैब्स यूआरएल गलत होता तो एनरोलमेंट पे कोई जहाँ असर तक नहीं मेरा पड़ता, आइडिया, बट मैंने सारी डिटेल्स करेक्ट ही भरी थी, ये प्रोफाइल यूआरएल को छोड़कर। ओके यार, अगर एनरोलमेंट फॉर्म मतलब एनरोलमेंट का ईमेल नहीं आया देन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट दिस टाइम, बट गूगल जल्द ही फिर से इस प्रोग्राम का नेक्स्ट एडिशन लेकर आने वाला है दिसंबर में। सो स्टे विद अस एंड हम अपडेट करते रहेंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से। सो यू शुड रजिस्टर द नेक्स्ट टाइम। या श्योर मैम, बाकी श्योर हाँ, मैम, ऐसा ही बाकी कुछ अगर होगा ना, यहाँ वो भी सेम। हाँ ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर गूगल के एंड से कोई और मतलब मे बी दे कैन चेंज द ट्रैक्स, लाइक इनके पास और भी ट्रैक्स हैं तो हो सकता है ट्रैक्स चेंज कर दें, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम होगा कि यही ट्यूटोरियल्स एंड इन लैब्स को जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे स्किल बैचेस मिलेंगे, एंड एक बार पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया देन उसके बाद में गुडीज एंड सर्टिफिकेट्स भी हैं। एंड बाकी यहाँ पे जो भी ऐसे लोग हों जिनको एनरोलमेंट का ईमेल आ गया हो बट क्रेडिट्स ना आए हों, तो वो लोग प्लीज़ DSC JSS का जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर दें, सो दैट हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकें। और कोई क्वेरीज? ओके देन रैप अप करते हैं ये जो सेशन था। होपफुली आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो एंड सब कुछ समझ में आया हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो एट एनी इंस्टेंस, चाहे आप हमारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो या किसी और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रामिंग में, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन आवर स्लैक चैनल। स्लैक चैनल का लिंक मैंने अभी चैट में डाला था। स्लैक चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लें सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड विद यू ऑल, एंड जितनी भी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग हैकटोबरफेस्ट या कोई भी हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स होंगे हम लोग पोस्ट करते रहेंगे इन चैनल्स पे। सो stay updated with us, and DSC JSS will try our best to bring out more and more tech-based events for you all so that you all keep learning and keep growing. So thank you from Team DSC JSS. We'll be ending the session now. Vatsal,